कहना चाहिए इट्स अ प्लेग्राउंड जहाँ खेलने के पैसे मिलते हैं. I think for me, nostalgia also because I've grown up watching, and that's all that I've ever known. The only memory. Without any money or anything, struggled for many years without even getting anything to eat. खाना भी उधार पे खाते थे. जब हमारी फिल्म आई थी किल तो उसकी ओपनिंग बहुत बड़ी नहीं हुई थी. लाइक इट ओपन टू अ वेरी डिसेंट नंबर, बट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ वर्ड ऑफ माउथ यू नो द वर्ड स्प्रेड. लोगों ने तारीफें की तो बाकी लोग गए देखने के लिए. बीच में वो दौर चला था थोड़े समय के लिए, लेकिन वो फिर वो उनको पता लग गया वो जम नहीं रहा है, तो ये काम से ही काम आएगा. मनोज पाहवा, Bobby Deol, Seher Bamba, लक्ष्य राघव जियाल, Anya Singh, and you're you're watching us on IWM. IWM Buzz. IWMBuzz.com. IWMBuzz.com. Hello everyone, welcome to IWM Buzz. This is Komal Vishwakarma and today we have with us is the cast of The Bads of Bollywood. Hello! Wow. After a while, like after a really long time, we are going to witness a project which breathes Bollywood. As actors, what does Bollywood hold for you? Like how will you define Bollywood? And what are your perspective on the various eras of Bollywood? And according to you, हम कौन से era में हैं Bollywood के? Long question. वाह. पहले वाला तो ये है कि what does Bollywood hold? For you. Yes. It holds work for me. Yes. बहुत वर्क दिया है मुझे उसने, और कुछ कर नहीं पाता मैं. सेकंड क्वेश्चन कोई और? I think for me, nostalgia also because I've grown up watching, and that's all that I've ever known. The only memory once I started remembering things was just films and just wanting to be a part of it. So yeah, that's my Okay. yeah. I think when I entered the industry, it wasn't called Bollywood with so much love. Bollywood. I think it was the Indian film industry. But somehow we always get influenced by the West, and because there's a Hollywood, so we have a Bollywood. But I guess now it's Bollywood, and it's my everything. It's what I dreamt about. It's what my father ran away from his village without any money or anything, struggled for many years without even getting anything to eat. खाना भी उधार पे खाते थे. एक बालकनी में उनको गेस्ट हाउस मिला था किसी घर में माटुंगा में. He struggled a lot, and I think the hard work and whatever he went through is what Bollywood means or stands for me. And I think every child grows up looking up to his father and dreams about aping him or becoming like him. Yes. And I am so blessed that I am a part of Bollywood, and it has given me so much love. It has given my whole family so much love because of being a part of Bollywood. I mean, it's just amazing, and that's the reason why all of us are here. I think everybody had dreams, and I think there's no business like show business. So Bollywood really holds and is a very special thing in my heart. We love the whole family. So do you want to add something to it? For me, कहना चाहिए इट्स अ प्लेग्राउंड जहाँ खेलने के पैसे मिलते हैं. बिकॉज मैं जब बचपन में स्कूल में अपना कुछ स्किट्स वगैरह करता था, फिर कुछ एक आधा प्ले वगैरह करने लगा, रामलीला करने लग गया, तो मैं ये सोचता था कि इस काम के अंदर जो मुझे मज़ा आता, काम लगता ही नहीं है मुझे. तो बहुत, अगर यही काम मेरा प्रोफेशन बन जाए तो कैसा रहेगा. और वो एक सपना सच हो गया. तो अब मुझे ऐसा लगता है, अरे यार चलो मजे आएंगे, है ना, और उसके पैसे भी मिल जाएंगे. तो दैट इज द आई एम लाइक आई विल से आई एम ब्लेस्ड कि मैं वो अपना सपना पूरा कर पाया. डेफिनेटली सर. बॉबी सर और मनोज सर, आप अगला सवाल आपसे ही है. आप लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है, मतलब हर एक्टर के साथ आपने काम किया है मोस्टली. हाउ इज इट वर्किंग विद न्यू टैलेंट्स? I have worked, thanks to OTT platform, I've worked with a lot of new talent. Yes. And I think I hold OTT platform as very special to my heart because it changed my career in many ways. It has given opportunities to so many of us sitting here. You know, I think be it actors who have been struggling since many years, be it people who have just stepped into this industry, it has recognized their talent. It's given them the opportunity to be seen. And even then, there's so many people who want to get into this industry. Yes. So, what is the question? How is it working with new talents? So, it is always it's so
there's so much of learning for me because they're so prepared. I mean, I look at them and I wish I was like them when I started my career. I wish I was so focused, so disciplined about things. Each and every one of them who are sitting with me right now and others who are in the show, you know, I think they inspire me because I started with Netflix itself. I did a film called Class of 83, which was produced by Red Chillies. And I still remember the first day when I was there sitting with all the actors who were there, all young actors, doing reading. And I was like reading and I had not even read it. And they knew it by heart. I mean, after the whole workshop got over, I'm asking them, yeah, how do you know, what's your process? Saying, no, sir, हमने इतने screen test दिए इसी character के लिए कि हमें अपनी लाइनें सब याद है. I'm like, my God, I mean, I'm so lucky that I didn't have to go through that when I started my career because things were very different, you know, in '95. And, but it's just, it's amazing, you know, it's just, not just as actors, I think in every department, there's so many young people working now. And so many people who didn't get work for so many years, who might not be young, but it's like a fresh start for them. Yes, definitely. So, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक नई तरह की एनर्जी का काम करता है जब भी मैंने लोगों के साथ काम करता हूँ. फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स के साथ भी बहुत काम किया है. ऐसा भी हुआ कि मैं एक सीरीज कर रहा था ये अपना, तो पता चला वहाँ गया तो निखिल थे, उन्होंने कहा वो तो मेरा असिस्टेंट था कल हो ना हो में, अपना मनीष मल्होत्रा का भाई जो है पुनीत मल्होत्रा, उसके साथ फिल्म कर रहे थे हम, स्टूडेंट ऑफ द ईयर. तो फिर मेरे को लखनऊ जाना था. लखनऊ में था निखिल लडवानी, वो अपना उसका एक वेब सीरीज था. तो उसने कहा कि अरे वो तो मेरे साथ था. तो मैंने कहा तू किसके साथ था आज से 10 साल पहले? तो वो असिस्टेंट था सुधीर मिश्रा का, इस रात की सुबह नहीं. सो यू नो, आप जब नए लोगों के साथ काम करते हैं तो आप जो काम करते करते तो आपकी थोड़ी सी जो है एक क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा आप सेटिएट हो जाते हैं, या थोड़ा सा जब आप नए यंगस्टर्स के साथ काम करते हैं जो भूख होती है ना प्रूव करने की, क्योंकि ये यार ये इसमें कुछ कर देना है. और जो कि आज से 30 साल पहले जब मैं आया था तो वो दोबारा से एनर्जाइज करता है मेरे को, और मुझे बहुत मजा आता है उस काम करने में. और मेरी अपनी खुद की एनर्जी और मेरा अपने जो क्या बोलते हैं कील कांटे हैं ना, वो थोड़े से तेज हो जाते हैं. ओके, है ना. तो वो मेरे लिए उस तरह से बहुत अच्छा रहता है, बहुत मजा आता है काम करने में. wow. My next question is to Seher, Lakshya, Raghav and Anya. आजकल है ना सोशल मीडिया का दौर है, आप लोग सब यूज करते हैं, हम सब यूज करते हैं. बट अब ऐसा हो गया ना कि आप हिट है नहीं है वो सोशल मीडिया पर डिसाइड हो जाता है. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सोशल मीडिया गेम? ये क्यों वर्डिक्ट जो सोशल मीडिया पर डिसाइड होता है? मुझे लगता नहीं ऐसा है. मुझे लगता है कि बॉक्स ऑफिस पे तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं रिफ्लेक्ट होते हैं. वो तुम्हारा काम ही होता है. वो फिल्म ही, मतलब अगर अच्छी हो और लोग कनेक्ट करें फिल्म से तो ही वो जेब से पैसा निकाल के आएंगे भैया थिएटर तक, वरना घर में तो सभी देख रहे हैं वो फॉलोअर्स. सो वो एक इस तरह के काम में तो नहीं रिफ्लेक्ट होता. बीच में वो दौर चला था थोड़े समय के लिए, लेकिन वो फिर वो उनको पता लग गया वो जम नहीं रहा है, तो ये काम से ही काम आएगा. I think it's a change that has come in the society and we have to adapt with it. We can't just be ignorant and say कि यार ये कुछ नहीं होता. This doesn't exist. It's not like that. Because social media is a platform where people communicate. People जब कोई फिल्म आती है तो लोग बहुत सारे reviews देखते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं उनकी. So you can't help it, but you have to adapt with it. अब कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है. जब कोई अच्छा कहता है तो जब हमारी फिल्म आई थी किल, तो उसकी ओपनिंग बहुत बड़ी नहीं हुई थी. Like it opened to a very decent number. But because of social media and because of word of mouth, you know, the word spread. लोगों ने तारीफें की तो बाकी लोग गए देखने के लिए. It is something that we have to live with, and of course there are pros and cons to it. Just like, you know, how times are moving ahead, we have to just move ahead with it and focus. Well, as what my brother said, that focus on making good films. इतना मत सोचो कि लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे. Of course, just back of the head, just लो कि अच्छा बातें होंगी. बट उससे तुम्हारा जो प्रोसेस है, जो तुम्हारा रिजल्ट है, वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए. बट वो होगा यार, बिकॉज यू कांट हेल्प इट. अगर मेरे फादर भी फिल्म देखने जाते हैं, वो ऑफकोर्स 2-3 पेजेस को फॉलो करते हैं, वो उसका रिव्यू देखेंगे कि वो क्या बोल रहा है इस फिल्म के बारे में. तो अच्छी फिल्में बनाओगे तो बातें कम होंगी.
So focus on making good films, and don't let. As an actor, I think it's not your job to give a lot of attention to what people are saying. If it's a good hit, it's a hit or flop, but just be okay with it and roll with it. But you know, these days films are not performing that well. Yeah. And उससे ना directors को, filmmakers, actors को काफी significant challenges face करने पड़ते हैं. So what do you think is the underlying cause of it? To films not doing well. Yes. Anyone can I answer feel मैं जब से इस इंडस्ट्री में हूँ तब से यही सुनने आता है कि फिल्म्स चल नहीं अच्छी रही, फिल्में नहीं आ रही हैं। अच्छी फिल्में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी फिल्में बन रही हैं. तो इट्स जस्ट दैट बिकॉज ऑफ सो मच सोशल मीडिया एंड सो मेनी अदर वेज ऑफ स्पीकिंग अबाउट थिंग्स, it is getting exaggerated beyond what it actually is. You know, so that's the only difference. But filमें, definitely it was a different period when my dad started his career. उन दिनों में तो पापा ने एक साल में 4-4, 3-3 हिट्स दिए हैं. हर एक्टर की होती थी फिल्म में. मतलब that was a different period because nothing was visible. अगर आपको कुछ देखना है तो आपको थिएटर जाकर देखना पड़ता था. अभी तो आप सुबह उठो देख लो यार ये एक्टर क्या कर रहा है, वो एक्टर क्या कर रहा है. So that whole charm has disappeared. Yeah. Plus, life has become such for the new generation that they're so used to that they don't find it necessary to put that extra effort to go to a theater, even if the film is good. Yes. The amount of percentage of people who watch cinema is so less compared to the population of our country. You know, so I think it's nobody's fault. It's just the way the world is moving forward. You know, in GPT, AI, ये सब हो रहा है. So it's taking away the creative side, hard work, appreciation towards that. And that is the reason why most of the people, I feel that more and more the honesty in their work is disappearing. That's why lesser films are being made which are very well. Yes. You know, that's what's happened. ये लास्ट भी जितनी भी फिल्म्स ने या फिल्म मेकर्स ने रिस्क लिया है वो चला है. Yeah. चाहे वो किल हो, चाहे वो लापता लेडीज हो, चाहे वो मुंजिया हो. आई थिंक जो जितनों ने भी रिस्क, लोका हो अभी जो आई है फिल्म, सो आई थिंक जो रिस्क चल रहा है लोगों को देखना पसंद आ रहा है. फ्रेश एनिमल हो, यू नो, चीजें चल रही हैं यार, वो जो रिस्क ले सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा शो जो है, इट्स अ वेरी ब्रेव अटेम्प्ट फ्रॉम आर्यन टू टेक दिस रिस्क कि भाई बॉलीवुड का हम ह्यूमरस टेक दिखाएंगे. जो चीज़ आप कंसेप्शन सोचते हैं, मिसकंसेप्शन सोचते हैं, उसको हम एक सटायर में दिखाएंगे और ये ब्रेव इनफ है. तो ये आई थिंक जरूरी है लेना. And also what this show will do to a lot of makers ना, I feel that it will give them courage. It will give them, because कभी किसी वो कहता है ना कि किसी को पहल करनी पड़ती है. तो I think वो आर्यन ने एक पहल कर दी है, एक ज्वाला जगा दी है वो. तो अब बहुत सारी चीजें I hope बने ऐसे जिसपे लोग और अटेम्प्ट करें कुछ नया करने का, कुछ फ्रेश करने का, कुछ बोल्ड करने का. वही फ्रेश करने का, बोल्ड करने का, not to copy what Not to he copy Yeah, what he exactly. does. क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है, एक कॉमेडी हिट हो जाती है, सब Template कॉमेडी. follow करेंगे फिर. Right. Be creative and be Yeah, and take chances. take chance. वो फॉर्मूला फॉलो करने की बात टाइप्स. There's a scene in the trailer which is which depicts the highs and lows in your career. But आप सबसे जानना चाहेंगे, in real life, क्या आपने कभी कोई ऐसा situation face किया है? If yes, how did you deal with it? I mean, we have a living example here. I mean, look at Bobby sir. हाँ यार. Look at Bobby sir, how. I mean, all of us. I mean, He even has a story in bounced himself. back. The way he has bounced back, it's a Yeah. story in itself. even Manoj ji must have gone through his ups and downs so much. या बिकॉज मेरे लिए क्या था कि मैं जब आया था तो पूरा परिवार था मेरे साथ, और मैं दूसरे शहर से आया था, और मैं 2 बच्चे थे, ये था. तो आई स्टार्टेड डूइंग टेलीविजन. तो मेरे लिए उस तरह का कभी स्ट्रगल नहीं रहा कि मेरे पास काम नहीं था, या जो कहते हैं भाई मैं प्लेटफॉर्म पे सोया, ये सोया, ऐसा कुछ नहीं. काम मैं शुरू से कर रहा था. मेरा स्ट्रगल एक्चुअली में था द काइंड ऑफ वर्क आई वांटेड टू डू, द काइंड ऑफ रोल्स आई एम केपेबल ऑफ. बिकॉज क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक किसी की गलती नहीं है, लेकिन एक क्या होता है, हर आदमी सेव करना, तो आप भाई एक इमेज बन जाती है आपकी कि भाई अच्छा भाई अच्छा गुड गोलू गोलू हैप्पी गो Typecast लकी, हो जाते हैं. हाँ टाइप कास्ट हो जाते हैं. तो मैं कहूँगा मेरे लिए स्ट्रगल ये था कि हाउ टू ब्रेक दैट. और ऐसा कुछ मैंने भी नहीं किया, लेकिन मुझे इतना था कि आप काम करते रहो, और जो आपको आता है उसके अंदर. अब आपको दोस्त के ही, पापा के ही रोल मिल रहे हैं, तो मेरे को ये लगता था कि वैसे देखा जाए तो दुनिया में सारे पापा एक जैसे तो होते नहीं है. पापा होते हैं, लेकिन पापा भी अलग अलग, तो उसमें ही अपना कुछ करते रहो. तो टाइम विल कम, एंड इट केम कि मेरे पास कुछ अच्छे रोल्स आए जिसके अंदर मेरे को. तो मैं कहूँगा मेरा स्ट्रगल उस तरह का था
तो उसके लिए मुझे काफी थोड़ा संघर्ष मैं करना तो पड़ा। आपका तो फैन में जब से आपको पहली बार देखा तो आज तक आपका फैन हूँ मैं. You always bring something different in your characters. That's what's so amazing about it. तो फेजेस आते रहते हैं, लेकिन मेरा यही मानना है कि आप लगे हुए हैं, सो चीजें बदलती हैं और आपको मिलता है, वो टाइम लगता है. नहीं, टाइम लगता है. I mean, you have to not give up in life. Simple as that. Never give up attitude होना Yeah. चाहिए. Okay, last question since we are short in time. सबसे जानना चाहेंगे, what are the advantages and disadvantages of being an actor or staying in Bollywood? Wow. Disadvantage ये है कि you always have to pretend that you're okay, and you always have to show up no matter what is happening in your life. So ये advantage तो बहुत सारे हैं, तो इसलिए वो जो एक चीज़ है वो कम लगती है, but advantages तो बहुत सारे हैं. You get to meet lovely people, you get to work, you get to create stories. Yeah, because when you're getting to do what you dreamt about and what your obsession is about and what your love is, then you don't think about the disadvantages so much. Because the more you think about the disadvantages, it takes away your focus towards what you really enjoy and love. और डिसएडवांटेजेस का वो तो जो सब पलड़ा इतना हल्का है वही। कि वो उसके बारे में मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है यार, ठीक है, we'll bear हाँ, with मतलब it. ये क्या तो है? मतलब बर्दाश्त कर मतलब लेंगे। इधर देखो ना कितना एडवांटेजेस है, मतलब वही. अब ढूंढने पड़ते थे वो डिसएडवांटेज, मिल नहीं रहे. मतलब आई फील एक्टिंग इज द ओनली प्रोफेशन जहाँ पे ना कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता. आपकी इच्छा है तो ही आप एक्टर बनते हो. और क्योंकि ये डॉक्टरी में इंजीनियरिंग में फिर भी पापा बिठा देंगे कान पकड़ के बैठ जा एग्जाम दे. ये काम वैसा है जो आप मन से करते हो तो ही आपको मजा आएगा. और हम सब वो 6 लोग ऐसे हैं जिनको ये काम पसंद है, इस काम से प्यार और वही कर सकता है, वही कर सकता वही है. कर सकता है कि लोगों को जैसे लगता है कि जितना ग्लैमर है और जितना ये है, अरे भाई ये तो गाड़ियों में घूमते हैं और ये कपड़े पहनते हैं, लेकिन जितना हार्डवर्क है, Yeah. जितनी मेहनत है, ये वही कर सकते हैं या वही टिक सकते हैं जो सच्चे मन में पैशनेट है, जिनको मोहब्बत है इस True, काम I से. agree too, sir. वरना Yes. लोग निकल जाते हैं कि यार हमारे कई दोस्त हैं बिजनेसमैन वगैरह जो हैं, वो कहते हैं तुम कैसे कैसे करते हो यार, तुम्हारा कोई टाइम नहीं, कोई होली नहीं, दिवाली नहीं. मैंने कहा भाई प्यार हो गया, अभी क्या करें, है ना, दैट काइंड ऑफ Yeah, that is. मोहब्बत है, अब क्या करें. अब वो सेट पे होली है, अभी सेट पे सेट दिवाली पे है. होली है, सेट पे दिवाली है, तो वही लोग कर सकते हैं. और सबसे बेस्ट मुझे जो पार्ट ये लगता है कि वी आर अलाउड टू बी वनरेबल Yes. एक्टर्स. हम्म. ये हमारा जॉब है टू बी इमोशनल, to show that, to show everything, to show whatever is going inside, either through their characters or through their rehearsals or whatever it is. हमारी जो वेसल है, हमें वैसा बनाना पड़ता है जो बचपन से दिया गया है, जो हम लोग कंडीशनिंग से हम रोक देते हैं अपना को, नहीं रोना, ये नहीं करना, ऐसे रहना है. बट वी आर अलाउड टू डू these things which are not, I think बाकी जगह नहीं मिलता है. So yes. All right, thank you so much. Thank I you. wish you all the very best for Bads of Thank Bollywood. you. Looking forward to watch it. Thank you so much. Thank you.